Hello viewers, Mokarize you on my YouTube channel Devi Prasad's Extraordinary English with the central aspect of colloquial English. So let's accentuate on indirect offers using if statements using the model forms could, would, and might. Predominantly, these modal forms bears testimony to our deference when we have a talk space with someone in English. So basically, हम आज देखने वाले हैं इन मॉडल्स को could, would and might इससे कैसे हम if स्टेटमेंट में यूज करेंगे। आपको पता होगा, आप बोल रहे होंगे कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, वुड यू माइंड फेसिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप ऐसे बोलते होंगे। लेकिन हम इस लेसन में देखेंगे इन मॉडल्स को कैसे if स्टेटमेंट में यूज करना है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो बेसिकली इसे यूज करने से क्या होता है, if स्टेटमेंट में यूज करने से ये सेंटेंस को और पोलाइट बनाता है, हमारा पोलाइटनेस शो करता है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। Predominantly, if is given preponderance in sentences to obfuscate or to put forth something slantindicularly to make our exhortations and impetrations more decorous. So ये if जो होता है इसे हम सेंटेंस में क्यों यूज करते हैं? टू obfuscate, टू रिक्वेस्ट करने के लिए, और टू put forth means to suggest something slantindicularly in an indirect way to make our exhortations means suggestions, हमारे suggestions और request को impetrations means request to make our exhortations and impetrations हमारे suggestions और request को more decorous करने के लिए, more polite करने के लिए, to make our exhortations and impetrations more decorous means polite. So if को sentence में कोई क्यों यूज किया जाता है? to obfuscate और to put forth something, request और suggest करने के लिए indirect way में, ताकि वो हमारे रिक्वेस्ट और सजेस्ट को और पोलाइट कर सके। फॉर इंस्टेंस, imploring someone, requesting someone, if you could give a ride to the infirmary. अगर if you could give me, अबे me एक काट कर देना, if you could give me a ride to the infirmary means hospital, अगर आप मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे सकते हैं, if you could give me a ride to the infirmary, give a ride to someone means लिफ्ट देना। If you could give a ride to the infirmary, I would be in my element. Yeah, I would be grateful. I would be happy. तो मुझे खुशी होगी। Be in my element means, be in someone's element means खुशी होना, to be happy. अगर आप मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। If you could give a ride to the infirmary, I would be in my element. देखिए इस तरह सेंटेंस बोलने से क्या होता है, ये हमारा पोलाइटनेस को शो करता है। यहाँ पे देखिए मॉडल जो है could, ये if स्टेटमेंट में यूज हुआ है। If you could give a ride to the infirmary, अगर आप मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे सकते हैं तो I would be in my element, तो मुझे खुशी होगी। I would be grateful. तो इस तरह देखिए सेंटेंस बोलने से कितना अच्छा लगता है, मतलब ये हमारा पोलाइटनेस को शो करता है। So imploring someone, if you could give me a ride to the infirmary, I would be in my elements, would be more pertinent or decorous as opposed to saying in a condescending way that is give me a ride to the infirmary. मतलब देखिए ऐसे बोलने से जैसे जैसे हम पहले वाले सेंटेंस में देखे if स्टेटमेंट में, if you could give a ride to the infirmary, I would be in my element. अगर आप मुझे हॉस्पिटल तक लीव दे सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। इससे बोलना कितना अच्छा लगता है, as opposed to saying in a condescending way that is give me a ride to the infirmary, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो। क्या कौन सा सेंटेंस ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है? आप मुझे हॉस्पिटल तक लीव दे सकते हैं तो मुझे खुशी होगी, ऐसे बोलना ज्यादा पोलाइट होता है, या मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो, कौन सा सेंटेंस ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है? बेसिकली प्रीडोमिनेंटली पहले वाला, इफ यू कुड गिव ए राइट टू द इन्फर्मरी आई वुड बी इन माई एलिमेंट्स, अगर आप मुझे अस्पताल तक छोड़ देंगे तो मुझे खुशी होगी, तो ये ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है। For instance, imploring someone, if he could give me a ride to the infirmary, I would be in my element, would be more pertinent or decorous, would be more polite as opposed to saying in a condescending way. Condescending way means dominating way में बोलना, मतलब ज्यादा डिमांडिंग लगना, जैसे गिव मी ए राइड टू द इन्फर्मरी, मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, ऐसे बोलना कभी डोमिनेटिंग लग रहा है। लेकिन ज्यादा पोलाइटनेस शो करने के लिए हमें पहले वाला सेंटेंस बोलना चाहिए, इफ यू कुड गिव मी ए राइड टू द इन्फर्मरी आई वुड बी इन माई एलिमेंट, अगर आप मुझे अस्पताल तक छोड़ देंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आपकी आभारी रहूंगा। नेक्स्ट, वी रिजर्ट टू कूड फॉर ऑब्सिक्रेशन, हम कूड को क्यों यूज करते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए। ऑब्सिक्रेशन मींस रिक्वेस्ट, ये नाउन फॉर्म है।
फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कुड पुल ए ब्लाइंडर, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, आई वुड बी इन raptures, तो मुझे खुशी होगी. इफ यू कुड पुल ए ब्लाइंडर, टू पुल ए ब्लाइंडर मीन्स टू परफॉर्म बेटर, टू परफॉर्म वेल, अच्छा परफॉर्म करना, बेहतर प्रदर्शन करना. इफ यू कुड पुल ए ब्लाइंडर, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो, आई वुड बी इन raptures. बी इन raptures मीन्स टू बी हैप्पी, मुझे खुशी होगी. इफ यू कुड पुल ए ब्लाइंडर, आई वुड बी इन raptures. ये रिक्वेस्ट शो करता है. Next, it is stated that wood is given preponderance to pieces decorously. मतलब रिक्वेस्ट करना पोलाइट वे में. वुड इज गिवन प्रिपोंडेरेंस, वुड यूज किया जाता है, वुड को इंपोर्टेंस दिया जाता है टू बीसीज डेकोरसली, टू रिक्वेस्ट पोलाइटली. बीसीज मींस टू रिक्वेस्ट, डेकोरसली मींस पोलाइटली. पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. प्रेडोमिनेंटली इट एग्जीक्यूट्स कंजेक्चरल जंक्शंस दैट्स नॉट एक्सियोमेटिक. बेसिकली ये क्या शो करता है? It exudes conjectural junctures, hypothetical situations that is not certain. Axiomatic means certain. जो फिक्स नहीं होता है, hypothetical situations होता है, उसके लिए हम would यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वुड डेसिडरेट टू conquest, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, बाय किकिंग ऑफ योर ओन बिजनेस एंटरप्राइज, तुम्हारा खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करके अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, आई कैन बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. आई कैन बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर यू. बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर समवन मीन्स टू हेल्प समवन. If you would desiderate to Comodo conquest means to earn money. Desiderate means to want. If you would desiderate to Comodo conquest by kicking up, kick up means to start something, kicking up, starting. Kicking off your own business enterprise. अगर तुम खुद का business enterprise open start करके पैसा कमाना चाहते हो, I can bend over backwards for you. मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. सो यहाँ पे वुड क्या शो करता है? पोलाइटनेस शो करता है. हम रिक्वेस्ट को ज्यादा कैसे पोलाइटली कर सकते हैं, इसलिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं. वुड इज गिवन प्रिपोंडेरेंस या वुड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट पोलाइटली. वुड इज गिवन प्रिपोंडेरेंस टू बीसीज डेकोरसली. Next is it is axiomatic that might is given preponderance to bring forth Panglossian exhortations. टेंटेटिव सजेशंस तो होता है. Panglossian मींस टेंटेटिव, जो फिक्स नहीं होता है, टेंटेटिव होता है. It is axiomatic that might is given preponderance to bring forth Panglossian exhortations. Exhortations means suggestions. So tentative suggestions होता है. For example, if we might countenance a frog strangler, अगर हम बारिश का सामना करते हैं, अगर बारिश होता है, we might countenance, we might face a frog strangler. Frog strangler means बहुत ज्यादा बारिश होना, उसे कहते हैं frog strangler. I have an umbrifuge. Umbrifuge means umbrella. अगर बारिश का हम सामना करते हैं तो मेरे पास छाता है. If we might countenance a frog strangler, I have one umbrifuge. That's the whole Megillah. Additionally, it's a wrap for today's lesson on slantendicular obsecrations, giving preponderance to if with modal false. Don't forget to ease into it. Thank you.